Yeah, good morning, everyone. I am Rohit Gupta, working as assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management in Applied Science Department. I am teaching you probability and statistics in semester 2. Today's topic: type 1 error, type 2 error. This type 1 error. The acceptance of H1 when H0 is true means when H0 is true, it's called type 1 error. The probability of committing a type 1 error is called level of significance and is denoted by alpha. Sometimes this definition is also called reject of H0 when H0 is true. Means either it is called आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं accept of H1 where H0 is true, it's called type 1 error, or you can write that reject of H0 where H0 is true, this is called type 1 error. Okay, आप H1 accept को लिख सकते हैं या तो reject of H0 कह सकते हैं. ठीक है, this type 1 error is called level of significance, and this level of significance is denoted by alpha. Understood? This is most important definition. Type 1 error and type 2 error, these are most important definition for MDU examination. In previous year or previous to previous year, they asked what is type 1 error and type 2 error. Okay, तो आपसे एक definition पूछ सकता है, define type 1 error or level of significance. तो क्या कहोगे? जैसे reject of H0 where H0 is true, or you can say that accept of H1 when H0 is true. This is called type 1 error. Second, another one is type 2 error. Failure to reject H0 when H1 is true. This is called type 2 error. This can also be write that. We can also write that reject of H1 where H1 is true, or accept of H1 where H1 accept of H0 where H1 is true, or you can write that failure to reject H0 when H1 is true, it's called a type 2 error. The probability of committing a type 2 error is denoted by beta. It is impossible to compute beta unless we have a specific alternate hypothesis. Okay, type 2 error को किससे डिनोट करते हैं? बीटा से. और type 1 error को किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से, which is also called level of significance. Okay, another thing, इफेक्ट ऑफ क्रिटिकल वैल्यू. हमने एक एग्जांपल किया था क्रिटिकल वैल्यू का. ओके, उसको हम देखेंगे. मूविंग द क्रिटिकल वैल्यू प्रोवाइड अ ट्रेड ऑफ बिटवीन अल्फा एंड बीटा. अ रिडक्शन इन बीटा इज ऑलवेज पॉसिबल by increasing the size of the critical region, but this increases alpha. Likewise, reducing alpha is possible by decreasing the critical region. It's not so important. Okay, effect of critical value is not important for you. Now this is a case study. Let us see what happened when we change the critical value from 10 to 8. हमने एक एग्जांपल किया था कि जब प्रोबेबिलिटी 0.05 थी और मैंने उसकी क्रिटिकल वैल्यू 10 दी थी और क्रिटिकल रीजन दिया था, तो मैंने क्रिटिकल वैल्यू 10 की जगह कर दिया 8. तो न्यू क्रिटिकल वैल्यू कितना हो गया? 8. तो करस्पॉन्डिंग जब क्रिटिकल वैल्यू के अंदर होगा तो ये रिजेक्ट एक्सेप्ट H0 कर सकते हैं या डू नॉट रिजेक्ट H0. इसको हम दिस कैन आल्सो बी सेड, 0 से 8 के बीच में होगा तो क्या करेंगे? एक्सेप्ट H0, या तो हम इसको लिख सकते हैं डू नॉट रिजेक्ट H0. और जब 8 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? रिजेक्ट H0. दिस इज कॉल्ड न्यू क्रिटिकल वैल्यू. और 10 वाले में कहता है दिस इज ओल्ड क्रिटिकल वैल्यू, ओल्ड क्रिटिकल रीजन, सॉरी, ओल्ड क्रिटिकल रीजन. Approximation the binomial distribution using the normal distribution. Factorization means जब n की value so large and probability of that one is small, then binomial distribution is applying as a normal distribution. Means binomial distribution एक normal distribution की तरह behave करो when n is very large. इसको हम बुक में लिखते हैं factorial of very large numbers are problematic to compute accurately even with MATLAB.
मींस जैसे 100 फैक्टोरियल हमें फाइंड या 10,000 फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक वैल्यू है, बिकॉज ये फाइंड करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। व्हेन n इज वेरी लार्ज एंड प्रोबेबिलिटी इज वेरी स्मॉल, देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है उसकी जगह, ठीक है। Thankfully, the binomial distribution can be approximately by the normal distribution. Okay. Theorem. If x is a binomial random variable with n trials and the probability of success of each trial will be p, then the limiting from the form of the distribution z is equals to x minus np upon np into, this is the root of, okay, under root of x minus np, but ये basically ये आया नहीं, this is under root of x minus np upon np np क्यों था, अरे म्यू को किससे डिनोट करते थे, np से, तो x माइनस म्यू था, तो म्यू की जगह मैंने np कर दिया, और np q की जगह क्या होता है 1 माइनस p। जब n इज वेरी लार्ज, दिस इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। This approximation is good when n is large and p is not extremely close to 0 or 1, means p is small but 0 से और 0 और 1 के बीच close नहीं होना चाहिए। Okay, now visual interpretation with normal approximation, ठीक, normal means visual interpretation क्या है कि अगर मैंने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैंने एक हाइपोथेसिस ली h नॉट का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया 0.05, दैट मींस अगर अल्फा इक्वल टू 0.05 है, दैट मींस h नॉट रिजेक्ट h नॉट वेयर h नॉट इज ट्रू। तो इसको मैंने डिनोट किया, दैट इज डिफरेंट कलर, पिंक कलर से डिनोट करता है, दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। ओके, आपको जब एग्जाम में आता है तो आपसे कुछ एनीबॉडी आस्क व्हाट इज टाइप 1 एरर, तो आप कहोगे रिजेक्ट ऑफ h नॉट वेयर h नॉट इज ट्रू, देन आप इस फिगर को बनाओगे, दैट इज टाइप 1 एरर। आप टाइप 1 एरर को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आल्सो, एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज डिनोटेड बाय अल्फा, और अल्फा को आप एक सिंपली एक वैल्यू ले लो 0.05, तो हम इसको कह देंगे ये कितने परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, दैट इज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अरे अगर पॉइंट नंबर्स को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी गोइंग टू 5%। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसको आप डिफरेंट कलर से ड्रा कर देना, दिस इज कॉल्ड योर level of significance या type 1 error rate. Okay, now what is h2 means type 2 error? If I'm saying type 2 error, then reject of h1 where h1 is true। अगर मैंने रिजेक्ट करा था उस वाले क्वेश्चन में, जो पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, दैट इज प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5% डिफेक्ट पीस होने के, वही वाला क्वेश्चन है। उसमें प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट कब हो जाएगा, जब प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.05 से ज्यादा होगा। 0.05 से ज्यादा कितनी हो जाएगी, 0.06, तो फेल हो जाएगा, मींस रिजेक्ट हो जाएगा h नॉट, तो क्या होगा, रिसेप्ट क्या होगा h1। तो टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर क्या होगा, टाइप 2 एरर को किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। दैट मींस बीटा का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट ऑफ h1 where h1 is reject, means h1 is true, p equal to 0.06। अगर मैंने बीटा की वैल्यू 0.6468 ले ली, दिस इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। ओके, अंडरस्टूड है। नाउ another one is if visual interpretation रिजेक्ट h नॉट कब रिजेक्ट होगा, जब अल्फा की वैल्यू 0.05, यहां से जब वैल्यू ज्यादा लेंगे तो ये वैल्यू क्या होंगी, 0.05 से ज्यादा होंगी, टाइप 1 एरर। अगर मैंने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.08 ले लिया, तो h1 इक्वल टू h1 सच दैट प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.08, तो अगर मैंने 0.08 ले लिया और मैंने अगर इसको मुझे रिजेक्ट करना है, दैट मींस इससे बड़ी वैल्यू लेंगे। अगर मैंने इससे बड़ी वैल्यू ले ली, बीटा इक्वल टू 0.936, दैट मींस रिजेक्ट h नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, अनदर वन फेल टू रिजेक्ट h नॉट। नाउ हाइपोथेसिस आर टू टाइप, वन इज वन टेल्ड, अनदर इज टू टेल्ड। टू टाइप की होती, किस किस टाइप की, वन टेल्ड एंड टू टेल्ड। ओके, in our examples so far we have considered h naught is a hypothesis such that theta equals to theta naught. Theta naught is a constant and theta is a variable here. If I'm saying h1 such that theta greater than theta naught, तो आपने देखा there is a only chance कि वो greater हो सकता है,
और इसमें लेस का चांसेस नहीं है, दैट मींस एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर मैंने थीटा की वैल्यू 5 लेता, सपोज एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग इन आवर हाइपोथेसिस टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस थीटा इज इक्वल टू 5, तो उसकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी, थीटा ग्रेटर देन 5। तो आप बताओ थीटा की ग्रेटर देन 5 पे वैल्यू क्या होगी, आइदर 6, 7, 8, 9, whatever will be, but this is shifted only on one direction. This is called one-tailed hypothesis with critical region in the right-tailed of the test statistics. अच्छा आप बताओ क्रिटिकल पॉइंट कहां पे होगा, जहां पे जिसके आगे ये वैल्यू, जहां पे ये एच नॉट रिजेक्ट होगा। अच्छा आप बताओ थीटा की वैल्यू अगर मैंने 5 ली था, थीटा नॉट इक्वल टू 5, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया 5। अच्छा 5 से ज्यादा किसी भी वैल्यू पे ये रिजेक्ट हो जाएगा एच नॉट, जहां पे एच नॉट रिजेक्ट होगा उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वैल्यू, और जिस रीजन पर रिजेक्ट होगा उस रीजन को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल रीजन। ओके, अगर ये एक ही साइड मूव हो सकता है तो दिस इज वन टेल्ड। अगर आप बताओ ये किस साइड में है, लेफ्ट में है कि राइट में, अगर 5, अगर ये थीटा नॉट है, दैट मींस टेक द वैल्यू 5, अगर 5 है तो दिस वन इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। तो अगर मैं राइट साइड में शिफ्ट हो रहा हूं तो इसका मतलब राइट टेल्ड, अगर मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट टेल्ड। सो वी हैव टेकन अनदर पॉइंट, अनदर वन टेल्ड टेस्ट। अगर मैं एच नॉट इक्वल टू थीटा, एच नॉट सच दैट थीटा इक्वल टू थीटा नॉट, तो H1 किस टाइप का होगा, थीटा लेस देन थीटा नॉट। अंडरस्टूड है, मींस अगर लेस देन लेंगे तो किस साइड के आएगा, छोटा इस साइड का आएगा। मींस अगर थीटा की वैल्यू मान लेता हूं, सपोज दैट थीटा नॉट इक्वल टू 5, अगर थीटा नॉट इक्वल टू 5 है तो H1 किस टाइप का होगा, थीटा लेस देन 5। अगर लेस देन 5 है तो ये किस साइड शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट साइड में। तो रिजेक्ट कब होगा एच नॉट, जब थीटा 5 से कम होगा। मींस थीटा नॉट, अगर यहाँ पे स्पेशल केस है तो थीटा नॉट कैसे कम होगा, अगर मैंने 5 ले लेता तो 5 से कम होता। रिजेक्ट एच नॉट, जिस रीजन पर रिजेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन। अच्छा यार लेफ्ट साइड है कि राइट साइड, दैट इज द लेफ्ट साइड, तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट टेल्ड। समझ में आया कि नहीं? अगर मैंने हाइपोथेसिस, जस्ट वन थिंग, अगर एक डायरेक्शन में शिफ्ट होता है तो वन टेल्ड, राइट साइड में है तो राइट टेल्ड, वन टेल्ड टेस्ट, राइट टेल्ड, अगर वन लेफ्ट डायरेक्शन में है तो लेफ्ट टेल्ड। अंडरस्टूड है? नाउ वी हैव टेकन अनदर वन इन अ टू टेल्ड टेस्ट फॉर डिफरेंसेस। अगर मैंने अगर मुझे टू टेल्ड टाइप की कैसे होगी, अगर मैंने एच नॉट एक नल हाइपोथेसिस थीटा इक्वल टू थीटा नॉट लेता, मींस थीटा की वैल्यू कितनी लेता, थीटा नॉट। अगर सपोज दैट, सॉरी दिस इज डज नॉट इक्वल, बाय मिस्टेक ये मिसप्रिंट से नहीं आया, थीटा डज नॉट इक्वल टू थीटा नॉट है ये। अगर थीटा थीटा नॉट के इक्वल है तब तो ठीक है, अगर ये थीटा डज नॉट इक्वल है, बाय मिस्टेक ये हो गया, गलत गलत नहीं है ये, इक्वल से जब हम उसको करते हैं तब वो मिस्टेक हो गया, ये दिस इज डज नॉट इक्वल है। ओके, तो H1 डज नॉट इक्वल टू, sorry H1 such that theta does not equal to theta naught। तो इन टू टेल्ड हम करेक्ट कर देते हैं, वी कैन करेक्ट दिस, थीटा does not equals to theta does not equals to theta naught, just a minute, sorry, थीटा इन अ टू टेल्ड टेस्ट चेक। तो हम अगर थीटा एज नॉट नल हाइपोथेसिस मैंने ली थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट, एंड अनदर हाइपोथेसिस थीटा डज नॉट इक्वल्स टू थीटा नॉट, तो मैंने अगर लेता थीटा नॉट की वैल्यू 5 ले लेता, तो अगर थीटा की वैल्यू 5 होती तो ये नल हाइपोथेसिस। रिजेक्ट कब होगा, जब थीटा 5 से इक्वल नहीं होगा, तो दैट मींस थीटा लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5, तभी तो रिजेक्ट होगा। अगर थीटा ग्रेटर देन 5 हो गया तब एच नॉट रिजेक्ट हो गया, क्योंकि 5 के लिए इक्वल, 5 के लिए थीटा 1 एच नॉट था, तो थीटा जब लेस देन 5 होगा तब होगा, और ग्रेटर देन 5 होगा तो मींस इट कैन मूव ऑन टू डायरेक्शंस, one is left direction and another is two direction,
second right direction, sorry, one is first one is left direction and another one is right direction. जब जहां पे h नॉट क्या होगा, रिजेक्ट होगा, मींस थीटा जब ग्रेटर देन थीटा नॉट से होगा तब रिजेक्ट होगा, और थीटा जब ग्रेटर देन लेस देन थीटा नॉट से होगा, सॉरी, तब रिजेक्ट होगा. तब आप इसको क्या कहोगे, टू टेल्ड. दिस वन इज टू टेल्ड. अच्छा, वन टेल्ड का मतलब आइदर वन साइड, मींस आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड. टू टेल्ड मतलब राइट एंड लेफ्ट बोथ, जब डज नॉट इक्वल वाली बात आएगी. दिस इज कॉल्ड टू टेल्ड. Means today we have discussed type 1 error, type 2 error and visual interpretation of normal distribution of type 1 and type 2 error. Understood? Then one tailed and two tailed test, both we have discussed. Okay, one thing, if theta greater than theta naught, one is left tailed and another is right tailed. अगर theta reject हो रहा है right side, that is called right tailed. अगर थीटा रिजेक्ट हो रहा, सिंपली अगर थीटा ग्रेटर है तो राइट में ही होगा, अगर लेस है तो रिजेक्ट होगा लेफ्ट पे. अंडरस्टूड है? कैसे याद करोगे? राइट का मतलब राइट, ग्रेटर का मतलब राइट और लेस का मतलब लेफ्ट. अंडरस्टूड है? ओके. 9 अगर डज नॉट इक्वल हो गया तो वो तो लेफ्ट भी होगा और राइट भी होगा. तो दिस इज कॉल्ड टू टेल्ड हाइपोथेसिस. ओके, थैंक यू सो मच.